Hello. It is said that well planned is half done, but I believe that this is completely wrong in the case of UPSC CSC. Because if I give you a 6 month plan or a 5 month plan, say today, and then मैं गायब हो जाऊँ, I'm not giving you any sources, I'm not giving you any resources, I'm not giving you any tests, I'm not giving you any target. If there is no guidance in those 6 months, then how are you going to follow that plan? Then it is as good as a garbage, right? फिर तो बस एक PDF है ना. Then what is the use of it? I don't believe there is any use of it. That is why I've never liked the idea of giving just planners, and I never do that. People who have been associated with me know this very well. So instead, in this particular video, what I will give you is a complete 5 month handheld guidance where you will not just be knowing the schedule, the plan, but also you will be getting the resources, the sources, how to do it, not just what to do. The difference between a plan and the handheld guidance is that a plan tells you just what to do, but that is never enough. Never in the case of UPSC CSC. If you do not have a personal mentor, you do not have a personal guide, which most of us do not. We're not that privileged. So, what we need is handheld guidance because it teaches us, it tells us how to do it. If I tell you have to read polity in this 1 week, is that enough? No, I have to tell you how to do it. Then I have to give you the test that you have to attempt after it. Then I have to tell you how to use the test best in a best possible way. How to attempt the PYQs, which PYQs are important, what to understand from these PYQs and everything. So if you're a serious aspirant, if you want a complete handheld guidance for the next 5 months, watch this video till the end. बाकी लोग जो मर्जी करें. All right. Okay. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. I welcome you back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain. And first of all, I would like to thank you immensely for all the wishes that you sent after the mains results. The wishes were in the number of thousands. I try to reply to as many as possible. But here I'm telling you that it really means a lot when you did that. Such heartwarming messages. Thank you so much. That's the first thing. The second thing is that this is the Understand UPSC ka Telegram channel. Please, you have to join this channel because this entire handheld guidance, this entire schedule, this entire so-called planner will work. This entire program will run on this particular channel, on this particular Telegram channel. You will be given updates, you will be given resources, sources, tests, everything will be there on the Understand UPSC Telegram channel. So even if you have not installed Telegram till date, you have to do that right now and join this Telegram channel. ठीक है. बाकी सब चैनल्स आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगले 5 महीने सिर्फ इस चैनल पे रहिए. यू विल बी द बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉब्लम्स. दैट्स माई गारंटी टू यू. ठीक है. इतने बड़े बड़े क्लेम्स हो गए. अब शुरू करें. ओके. वो क्या बोलते हैं, शुरू करता है. सो बिफोर वी बिगिन, बिफोर यू सी द प्लान, देयर आर अ वेरी फ्यू but very important pointers that I need you to understand. First is that following this plan will be a typical task and only hard working serious aspirants will be able to do that. मैं यहाँ पे कोई मैजिक पिल नहीं दे सकता आपको कि ये लो 2 घंटे पढ़ाई करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा. दैट इज़ नॉट इन मी, है ना. वो लोग जो प्रेडिक्ट कर देते हैं पेपर्स वो कर पाते होंगे. मैं तो इतना बड़ा वो क्या एस्ट्रोलॉजर का पैरट नहीं हूँ कि मैं प्रेडिक्ट कर दूँ क्वेश्चन. सो आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. आई एम नॉट अ पैरट. So this will require serious 10 plus hours of study. You'll have to work hard. That's the first requisite. Second is that in your daily division of time, please keep noting these things down. Also, this PDF will be available on the Telegram channel. By evening, I'll put it. So the daily division of time shall be like this. There should be 5 slots. One for GS, the second one for PYQs of that particular GS subject, third will be CSAT, and fourth will be current affair monthly magazine and its revision. ये आपके 4 स्लोट्स होने चाहिए. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. देन नेक्स्ट, PYQs. PYQ, as I said in the last video also, is the one single most important thing in the entire UPSC prelims preparation. Okay, so we will make you do nearly 25 to 30 years of PYQs. How will you do them? You will do them once in round 1, then second time in round 2, third time in the last 15 days, and nearly 10 years of PYQs you will do with me. This will be to develop your aptitude, to develop your understanding of the paper, understanding of the trends and techniques and everything, to basically develop your MCQ aptitude. All right, ये round 1, round 2, round 3 क्या है, last 15 days क्या है, this you'll understand once I take you through the video. But please listen to the video very carefully. Okay,
Now, please understand that apart from the tests that are mentioned in the plan that we will be providing you on the Understand UPSC Telegram channel and the PYQs that you will do, we will also make you do some other important MCQs as well जो हमें लगता है कि important है. हमारे ऐसे मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस एंड बाकी जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है हमारे प्रीलिम्स की उनके अलग अलग वेरियड एक्सपीरियंसेस, वी विल गिव यू सर्टेन MCQs एज वेल. तो वो सब भी आपको कहाँ मिलेगा? एक ही पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा. यू ऑलरेडी नो दैट, टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन इट एंड डू दीज MCQs. तो आपको हम जो भी बोलेंगे, यार लोग ये बोलते हैं ना ब्लाइंड फेथ मत करो, पर मुझे लगता है ब्लाइंड फेथ इज द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि वंस यू हैव अ ट्रस्ट इन अ पर्सन ब्लाइंडली, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है ना, फिर तो बस आपको चलते जाना है. एंड इफ यू नो दैट द पर्सन विल नेवर बिट्रे यू, इफ यू हैव दैट इमेंस अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, तो फिर क्या दिक्कत है ब्लाइंड फेथ करने में? तो यार मैं तो एंडोर्स कर रहा हूँ, हैव ब्लाइंड फेथ ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे एंड इन द नेक्स्ट 5 months. ब्लाइंड, आंखें बंद करके पट्टी बांध लो आंखों पे. नेक्स्ट, लेट मी एड्रेस अ फ्यू क्वेश्चंस वेरी फटाफट से, एकदम से जल्दी जल्दी. वाई आर वी स्टार्टिंग अर्ली? भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आई कैन गिव यू अ 4 month प्लानर, अ 3 month प्लानर, अ 2 month प्लानर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे 10 मिनट नहीं लगेंगे प्लान बनाने में. इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग दैट वन कैन डू. बट प्लीज अंडरस्टैंड यार, अगर if I tell you that just give 4 months for prelims or just give 3 months for prelims, and if you are not able to clear prelims in those 3 to 4 months, और मैं बोल रहा हूँ कि अभी 1-2 महीना मेंस पढ़ते रहो, क्या करोगे यार उस मेंस की पढ़ाई का? मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आपके घर वालों का आप पे कॉन्फिडेंस कम होता है, एंड देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल इमोशनल प्रॉब्लम्स दैट जनरेट अप. आपका एंथुजियाज्म कम हो जाता है यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अटेम्प्ट्स कीप ऑन एग्जॉस्टिंग. Nobody understands this better than me, okay? So please start early, please start strong, please stay consistent, please stay with us. That is why this is a 5 month planner. बहुत आसान था मेरे लिए इसको पोस्टपोन करके फरवरी में लेके जाना, but that will not work for majority of us who are not privileged and gifted. This will not work. Second, what about mains preparation? समझो, this plan starts on 25th of December, so you have 15 days completely to like give to mains preparation. अपना ऑप्शनल करो, जो करना है करो. Then even after that, if you can manage, for example, if you know that you are good at CSAT, or you can give little less weightage to CSAT, in that particular time slot what you can do is you can do your mains preparation, you can do your optional. If you that for example the initial 10 days are given to polity, okay, I'll take you through the planner abhi. So if you think that you're good at polity and you can manage it, so that particular time you can give your mains preparation. However, if you really want to follow the plan, then follow the plan. मेंस प्रेपरेशन थोड़ी बहुत रह भी जाएगी, इट्स ओके, बाद में हो जाएगी. एक चीज समझो, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. करंटली यू विल गिव मे बी से वॉट 10 days, 20 days, 30 days एट मैक्स टू मेंस प्रेपरेशन. ठीक है, इसके चक्कर में वॉट यू विल डू इज यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रीलिम्स. यू विल डू दैट, एंड यू इफ खुदा ना खास्ता प्रीलिम्स नहीं हो पाता है, what you will miss upon is 100 days of mains preparation. prelims के बाद तो 100+ days मिल रहे हैं mains preparation के लिए, तब कर लेना. अभी के 10-20-30 दिन के चक्कर में क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो prelims अपना? भाई जब prelims नहीं निकलता ना बहुत खराब लगता है, घर वालों को समझ नहीं आता बताना कैसे है. तो prelims पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपन को. बात समझ आ गई? ओके. डू वी नीड एनीथिंग एल्स टू क्लियर prelims अदर देन व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू? हाँ, सिंपल सी चीज चाहिए आपको, हार्ड वर्क चाहिए बहुत ज्यादा इमेंस, और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, बाकी जो आपने प्लान्स बनाए हैं, जो आपको किसी ने प्लान्स दिए, आप सब हटा दो साइड. फॉलो दिस. अब आपको समझ में आ जाएगा मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, इतने बड़े बड़े क्लेम्स क्यों चल रहे हैं, समझ में आ जाएगा एज यू गो थ्रू द प्लान. बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपको कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा. दिस कैन बी योर अल्टीमेट सिंगल सोर्स टू एवरी ऑफ योर प्रॉब्लम. यहाँ पे हर चीज दूंगा मैं आपको, हर चीज दूंगा. Lastly, I have a very small advice to all of you. Be thoroughly hardworking, thoroughly consistent, and thoroughly dedicated from day one to the last day. नहीं तो क्या होगा कि फ्रॉम 2 months डाउन द लेन यू विल बी मैसेजिंग एंड आस्किंग सर 3 महीने रह गए, प्रीलिम्स कैसे प्रिपेयर करें. 4 months डाउन द लेन यू विल बी अंडर सच प्रेशर कि यार कुछ भी पढ़ लेता हूँ. यू विल बी बाइंग कोर्सेज. क्यों बिक रहे हैं इन लोगों के फालतू के कोर्सेज? वाई गार्बेज कोर्सेज क्यों बिकते हैं मार्केट में? क्योंकि आप फियर में हो, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो. तो उनको ब्लेम मत करो कि वो गार्बेज कोर्सेज बना रहे हैं, खुद को ब्लेम करो कि आप उनके कोर्सेज खरीद रहे हो, बिकॉज यू हैव नॉट वर्कड हार्ड इनफ. इफ यू वुड हैव वर्कड हार्ड इनफ यू विल नॉट फॉल फॉर दैट fear and that garbage. Khair, and those parrot based predictions. All right, खैर ठीक है, चलिए. So
Let me show you the understand UPSC what is YPLP. ये prelims last prelims, you have to have this in your mind. ये prelims last prelims, this prelims is my last prelims. I'll work so hard that this prelims will be my last prelims. I'll write means this year. Handheld guidance, okay? This is not just another plan. This is handheld guidance. अब समझ लो एक बार. Understand what particular slot means. See, for example, on 25th, 26th and 27th of December, what you have to do is you'll have to study for Polity Test 1 का syllabus. ये syllabus क्या है, टेस्ट में क्या आएगा वो मैं बता दूंगा आपको. Then on 28th, we will provide you Polity का Test 1 that you will have to attempt, analyze and make notes out of it. अटेम्प्ट कैसे करना है हम बताएंगे, एनालाइज कैसे करना है हम बताएंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं हम बताएंगे. ये प्रीलिम्स का टेस्ट 1, क्योंकि यार हमारे पास तो पैसा नहीं है, टीम नहीं है, वी विल नॉट बी एबल टू मेक टेस्ट. जो हमें बेस्ट टेस्ट लगता है आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द टीम, वी विल प्रोवाइड यू दैट ऑन द चैनल और ऑन अ डिफरेंट ग्रुप. यू कैन फॉलो इट. नो कॉपीराइट वायलेशंस विल बी डन फॉर दीज थिंग्स. Anything that is present openly in the market only will be provided to you, but it will be of the best quality based on our years and years of experiences, so don't need to worry about that. बात समझ आ गई. After that, on 29, 30, 31, you will study for Polity Test 2, itna, and then on 1st of January, you will attempt the Polity Test 2, and again attempt, analyze, and make notes out of it. बात समझ में आ गई. So in these 4 and 4, 8 days, you are done with your Polity 1s. ठीक है. Then after every subject, I have given you one particular break day, but this break day is not for your leisure time. बैठ के मस्ती नहीं मारनी है इसमें. This is for revision. अगर कुछ बच गया तो उसको बैकलॉग कंप्लीट कर लो. If you can study, then revise. And if you are done with all of that, then you can take a break of a few hours and watch something or enjoy. Go out and play cricket. है ना, बजाओ. खैर ठीक है, बात समझ आ गई. एक स्लॉट समझ में आ गया. ऑल्सो अब समझो दूसरी चीज. बिफोर एनी ऑफ दीज स्लॉट्स आपको इससे पहले ही हमारे यही यूट्यूब चैनल पे बता दिया जाएगा. यू विल बी टोल्ड हाउ टू स्टडी पॉलिटी, हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हाउ टू डू द PYQs ऑफ दीज टॉपिक्स, सब. How to study it so that you will not get any question incorrect in the examination out of polity. Highest hit rate होना चाहिए, सब बताया जाएगा in one strategic video. Entire thing will be discussed. Okay. डेली आपको PYQs दिए जाएंगे. डेली आपको पॉलिटी के PYQs दिए जाएंगे from the past 25 to 30 years, and these will be provided to you on the channel. You have to attempt them daily and you have to make notes out of them. वो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा. Please understand one very simple fact that PYQs are the most important thing. I was analyzing the 2023 का paper and I'll give to you in a video. More than 30 courses are directly sourced from PYQs, so they are very 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 important. बट किसी का कोर्स खरीदने से नहीं होंगे वो क्वेश्चन सोल्व, खुद की मेहनत करनी पड़ेगी. आज सुन लो या अगले प्रीलिम्स के लिए सुन लेना, चॉइस आपकी है. ठीक है, शुगर कोट करूंगा नहीं, हार्शली बोलूंगा, बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे नहीं क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं. समझ आ गया. सो बिफोर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू विल बी गिवन एवरीथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे बेस्ट पढ़ना है, सब बताया जाएगा. कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. यू जस्ट हैव टू वॉच दैट, फॉलो दैट फॉर द नेक्स्ट गिवन अमाउंट ऑफ डेज, attempt the tests and move ahead. आप ये करो पहले दिन से, everything will be sorted. बात समझ में आ गई. Similarly, then you will go for geography. इसका same planner. Then we will do ancient, medieval and culture. Same चीज. टाइम अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा. ठीक है. ऑल्सो फॉर एनीबडी हु हैज नॉट स्टडीड एनी सब्जेक्ट, मतलब अभी तक नहीं पढ़ा है, if somebody is in their first attempt and they have not studied ancient medieval अभी तक, पढ़ो. These 15 days, read your static subjects, read your static books. The sources have been mentioned in the prelims master class 1, 2. In the prelims master class 2 में detailed sources दिए, इससे just 2 वीडियो पहले देख लो उसको and understand the sources and then read them in these 15 days. पढ़ो उनको इन 15 दिनों में, ताकि आप उस टाइम ये ना बोलो कि सर 2 दिन में एंशिएंट, 3 दिन में एंशिएंट कैसे करें. भाई ऑब्वियस सी बात है ना यार. यू कैन नॉट जस्ट से कि सर हम जनवरी में शुरू कर रहे हैं एंड वी हैव नॉट स्टडीड एनी सब्जेक्ट टिल डेट. नहीं, ये नहीं चलेगा. टेक दिस 15 डेज, get out of your mains preparation and read the static subjects once. It's very important अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो. ठीक है. then again for modern India and ऐसे चलेगा. so by the end of 29th of January we are done with history as well. then we'll do economy, then we'll do environment also. देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 14th Feb मैंने आपको ब्रेक दे दिया है ना. मैं किसी के उसमें बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, तो आप अपना 14th Feb अच्छे से यूज कर पाओगे. ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए कुछ भी सोचते रहते हैं बच्चे. ओके, नेक्स्ट साइंस एंड टेक. ठीक है.
देन लास्ट में साइंस एंड टेक करेंगे, एंड दिस इज हाउ आर फेज 1 विल एंड ऑन 20th of February. So 20th of February तक you will be done with one round of everything, one round of all your static subjects. ठीक है, करंट अफेयर सी सेट आपका साथ में चलता ही रहेगा डेली बेसिस पे. ठीक है, PYQs में कराता ही रहूंगा डेली बेसिस पे. शॉर्ट हो गया, GS आप पढ़ते रहो, हम बता देंगे आपको कैसे पढ़ना है. विल टेल यू हाउ टू रीड इट, यू रीड इट. समझ आ गया. नाउ what will start is your phase 2. This phase 2 will begin from 21st of February. Again, अब हम रिविजन करेंगे इसमें. So now you have polity test. You just have to analyze it, attempt it, and make notes out of it. Attempt, analyze, make notes. Similarly, polity test 2, polity test 3, and then again ये आपका ब्रेक डे मैं आपको देता रहूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. ब्रेक कह लो, रिविजन कह लो, बैकलॉग कह लो. देन सिमिलरली एंशियंट मिडाइवल कल्चर मॉडर्न के 2 टेस्ट कराएंगे. 19th मार्च डन. देन वील डू मेक यू डू पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह. अच्छा हाँ, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है. तो मैंने क्या किया है, बीच में रिवीजन की चीज़ें भी डाल दी हैं. सो फॉर 20 and 21 व्हाट यू विल डू इज यू विल रिवाइज पॉलिटी हिस्ट्री. अभी आपने पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ी, जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड गिव अ रिवीजन टेस्ट ओवर इट. देन रिवाइज फॉर ज्योग्राफी टेस्ट 1, देन अटेम्प्ट ज्योग्राफी, फिर उसके बाद अटेम्प्ट एनवायरनमेंट, देन रिवाइज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. सो पहले पॉलिटी और हिस्ट्री कर ली, उसको रिवाइज कर लिया, फिर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी कर ली, उसको रिवाइज कर लिया, उसका भी टेस्ट दे दिया. सो यू आर हियर एट 11th of April. देन सिमिलरली फॉर इकोनॉमी and lastly for science and tech. ये चीज हुई. on 25th of April you will be done with your phase 2 as well. आपके सब स्टैटिक 2 बार रिवाइज हो चुका है, नोट्स बन चुके हैं आपके. you will be done with your test, you will be done with your analysis, everything. you will be done with 2-3 rounds of PYQs as well. मैं भी करा दूंगा यहाँ तक सब. आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, सब हो जाएगा. only if you will work hard, you will trust us and you will follow this. clear? चलिए let's move ahead. so now 25th April आ गई है. सो नाउ यू जस्ट हैव 1 month इन योर हैंड. तो अब इस 1 मंथ में हमें क्या करना है, दैट्स द फेज 3 फाइनल मंथ. सो ऑन 25 बिटवीन 26 to 30 इन दीज 5 days व्हाट यू विल डू इज यू विल रिवाइज योर वीक एरियाज. इसमें हम आपको कोई टेस्ट नहीं देंगे, आपको अपने वीक एरियाज रिवाइज करने. दैट यू विल आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट दैट यू विल गिव इन द फेज 1 एंड फेज 2. ठीक है. देन बिटवीन 1 and 10th, बिटवीन 1st and 10th of May we will make you attempt the FLTs and then alongside the revision will continue. आपको रिवाइज करना है, FLT देना है, रिवाइज करना है, FLT देना है. 4-5-6 आपको FLTs हम लगवा देंगे एंड यू विल बी डन विद. ठीक है. फॉर एवरी टेस्ट दैट यू अटेम्प्ट विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द कट ऑफ, एवरीथिंग. मतलब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, सिंगल सोर्स है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, आपको हम बताएंगे आपको एनालाइज कैसे करना है. आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, हम आपको कट ऑफ बताएंगे उस टेस्ट की, आपको और ज़्यादा मेहनत कैसे करनी है वो बताएंगे. सो टेंशन है नहीं, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड. एंड ये सिंगल सोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ये इससे बेटर कुछ नहीं है. मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ, है ना, वो क्या चलता है वो गारंटीड, एश्योर्ड. ठीक है, मैं लेके बोल रहा हूँ. सो देन फ्रॉम 11th to 25th कोई टेस्ट नहीं करने हैं, है ना. दुनिया में कोई भी बोल दे आके, ठीक है, कोई भी बोल दे दुनिया में आके कि मैंने तो प्रेडिक्ट कर दिया था अपने टेस्ट में, आपको वो टेस्ट नहीं करने. आप बोलो कि आप अपनी ये तोता प्रेडिक्शन अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए पैरेट प्रेडिक्शन. हम इस टाइम पे क्या करेंगे, वी विल जस्ट रिवाइज एंड वी विल बी इन द PYQ मोड. बिकॉज ऑफन व्हाट स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक इज दैट they will keep on giving tests till the last and they'll keep on getting demotivated and more importantly they will shift from the MCQs of PYQs trend. उससे शिफ्ट हो जाएंगे एंड they'll start thinking as per टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज नहीं सोच, टेस्ट सीरीज की थिंकिंग को हटा देना है. टेस्ट सीरीज इज जस्ट फॉर नॉलेज, है ना. आपको लास्ट के टाइम पे अपने दिमाग में PYQs रखने हैं. सो दैट इज व्हाई इन दीज 15 days you will revise, you will not write any more tests and you will be in the PYQ mode. ठीक है, बात समझ में आ गई. एक चीज आपको समझनी पड़ेगी दैट every component that has been added in this particular guidance, in this particular program is completely based on our experiences and harsh experiences. जो ठोकरें हमने खाई है, जो हम ये मिसगाइड हुए हैं इस इंडस्ट्री की वजह से, उसके अगेंस्ट है ये सब, उससे सीख के है ये सब. अपनी मिसगाइडेंस से, अपने हार्श एक्सपीरियंसेस से सीख के कंपोनेंट डाला है. फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर चीज, I missed my 2019 का prelims with a very narrow margin of just 2 point something marks. बहुत narrow margin से मैंने मिस किया था because I was not in the PYQ mode. I was attempting open test, फलाना टेस्ट, धिमाका टेस्ट till the last. जाके क्वेश्चंस 3-4 गलत कर दिए, बाहर हो गया. ठीक है, तो we respect your hard work and that is why we will guide you in the best possible manner. So please remember this. Then भाई 25 तारीख डन हो गई है. Now on 26th you have to go and conquer UPSC prelims because now you understand it and what we understand we conquer. ठीक है,
Any doubts that you have regarding the plan, anything at all, you can write in the comment box. If you have understood the plan, you can tell me that you've understood the plan. If you have any more issues, if you want to say anything at all, just write it in the comment box. I'll be seeing to it. You'll get this PDF and everything on the Understand UPSC Telegram channel. देखो यार, हमारा तो बहुत साल चले गए, इवन आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड. कल ना कोई अपने चैनल पे एक कोई पैरेट प्रेडिक्शन वाले सर हैं, वो अपने चैनल पे डाल रहे थे कि एक एस्पायरेंट होते हुए भी आप दूसरे एस्पायरेंट को गाइड कर रहे हो, ये तो धोखा करना हुआ, है ना. बहुत ही बकवास सा आर्ग्यूमेंट है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि जिस इंसान ने खुद झेला हो ना, जिस इंसान ने खुद इमेंस मेहनत करने के बाद भी ये देखा हो कि बिकॉज ऑफ गाइडेंस वो इंसान कर नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर ना आग होती है इस चीज़ की कि मैं कैसे दूसरों को बता दूं भाई कि तुम्हें ठीक करना है. उन्होंने बोला मैं तो अपने कॉम्पिटिटर को कभी हेल्प नहीं करूं. ठीक है ना सर, वो आपकी छोटी सोच हो सकती है, हमारी नहीं है, क्या करें. नहीं मिले हैं वैसे संस्कार, हमें हमेशा से ये संस्कार मिले हैं कि अगर एक रोटी है और सामने वाले को भी भूख है तो आधी दे दो अपनी. बिलोंग करते हैं सर वैसी संस्कार से ना, हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं. तो कंपटीशन की तरह नहीं देखते सर हम अपने साथ के एस्पायरेंट्स को. वी डोंट व्यू देम एज कंपटीशन. जाके पूछ लेना जिन लोगों ने मेंस लिखा है हमारे साथ इस बार, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रुप है सर इंडिया में इंटरव्यू का. कंपटीशन की तरह नहीं देखते हम. ये भाई बहन है हमारे, ये फ्रेंड्स हैं हमारे. मेरा छोटा भाई होता सो कंपटीशन की तरह देखूंगा क्या सर मैं, पर आप नहीं समझेंगे थोड़ा. ब्रॉड माइंड चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, है ना. प्रेडिक्शन वाले लोग नहीं समझ सकते सर. खैर चलिए ठीक है, नॉट डिवेल्विंग डीप इनटू दिस, जस्ट वांटेड टू टेल यू कि भाई हमने अपने प्राइम ईयर्स खोए हैं, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ ईयर्स, वी डोंट वांट यू टू डू दैट, एंड आई वांट ईच ऑफ यू टू राइट मेंस यार. एटलीस्ट बी बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट. भाई उस दिन कुछ खराब ही हो जाए जो अपने हाथ में ही नहीं है, कि भूकंप ही आ गया, धरती फट गई, तो बात अलग है. एटलीस्ट अपनी बेस्ट प्रिपरेशन तो दे, सही गाइडेंस तो ले. सो फॉर दैट दिस विल बी द थिंग, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ये रिक्वेस्ट भी है, ये आपको ऑर्डर भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ you'll see द डिफरेंस. हमने मेंस कराया तो ऐसे कराया कि लोगों की मेंस की प्रिपरेशन बदल गई है ना. लोगों ने अपने पोर्टल्स बंद कर दिए हैं, पेड पोर्टल्स. अब हम प्रीलिम्स कराएंगे तो ऐसे कराएंगे कि ठीक है, बाकी आप जानते ही हो. थैंक यू सो मच. अंडरस्टैंड यूपीएससी, the only platform by the aspirants for the aspirants of the aspirants, which people won't understand. ये बॉन्ड जो आपका मेरा है ना, ये लोगों को थोड़ी समझ में आने वाला है, लोगों को बोलने दो यार. ऑल राइट, टेक केयर एवरीबॉडी, till we meet next time. This is Satyam Jain signing off with only a single thought. Jai Hind, Vande Matram. ये prelims, last prelims.